So, hello everybody. We are here with our fifth session today, which is building ecological communities in the farm versities context. How each farm versity can play a pivotal role, a catalytic role in building a local uh, resilient community. And this is Manas, and I have with me three very experienced panelists here. I have Rajiv Ji, who's joining in from Gurdaspur. I've got Ilyas, who's joining in from Kerala, and I've got Karan, who's joining in from Rajasthan, Udaipur. And I also have Atul, who's the IMA coordinator here. And with me in support is Kalashri, who is been putting in a lot of work, uh, putting all this entire show together, this entire series together. Today is the fifth day, and so far we have talked about building curriculum. We have talked about action research. We have talked about uh, entrepreneurship and livelihood, and we have also talked about schemes and policies. And today, the final session where it all kind of culminates is where it is about creating a strong, resilient community where everything comes together, all of these things, and how a farm versity can be at the core of creating this local community. And we will get to know and get to hear from each one of our panelists what are their stories, what are their aspirations, challenges, and the things, hacks, what they have, and what they've applied in creating these communities. Of course, it's possibly work in progress. But let's hear from each one of us. And it's time now. It's 7:05 and we should start uh, sharp. So let me invite for a quick introduction. Let's have Rajiv ji uh, to give a brief introduction about you, your work, and your organization. Rajiv ji, your mic is mute. जी, सबको मेरी ओर से नमस्कार। मैं राजीव कोहली बोल रहा हूँ, पंजाब से, गुरदासपुर सिटी, पठानकोट के पास में पड़ता है, यहाँ से। तो खेती विरासत मिशन एनजीओ जो पंजाब में काम कर रही है, मैं पिछले 10 साल से इनके साथ काम कर रहा हूँ। तो थोड़ा-सा यहाँ तक कैसे पहुँचा, वो मैं बता देता हूँ। My formal qualification, I graduated in mechanical engineering from 1990. So as usual, like others, rat race में हम भी शामिल हो गए. तो I worked in Delhi as a air conditioning engineer. वहाँ से दुबई चले गए, कुछ देर वहाँ काम किया, फिर वहाँ से मैं कनाडा शिफ्ट हो गया. तो उसके बाद 2014 में मैं वापस आया हूँ. तो during this time 2014 or before that, I would say I was always concerned about environmental issues. मेरे लिए एक ये इशू होता था कि जैसे एक एवरेज पर्सन ही थिंक्स मेरे बाप दादा ने, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मेरे लिए 100 एकड़ ज़मीन दी है, 20 एकड़ ज़मीन दी है, मैं इस ज़मीन का मालिक हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ, आई कैन यूज़ इट इन एनी वे. Or water resources or other things we can use any way we want. So I think we should think in other way, that this is not the things coming from our grandparents to us for us to use it anyway. It is like something which we have borrowed from our next generation. हमारी 3 जनरेशन के बाद जो हमारे बच्चे होंगे, उनका जो उनके लिए पानी है, हवा है या ज़मीन है, वो borrowed बेसिस पे आज हमारे पास है, एंड वी शुड मेक श्योर कि हम उसको
बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करके, खराब करके उनको वापस नहीं दे रहे हैं। जैसे हम किसी अपने दोस्त से गाड़ी लेते हैं 1-2 दिन के लिए, तो वी मेक श्योर कि हम उसको खराब करके वापस नहीं देना है, उसको ठीक-ठाक वापस देना है। अगर उसको कोई एक्सीडेंट हो गया, डैमेज हो गया, तो हमने उसको रिपेयर करके ठीक कंडीशन में वापस देना है। तो वी शुड थिंक दैट वे। 3 जनरेशन बाद, 5 जनरेशन बाद हमारे बच्चों को जो मिलना है, वो उनसे हमने बोरो करके ये आज हम हवा-पानी यूज़ कर रहे हैं, तो उसको सस्टेनेबल वे में यूज़ करके उनको ठीक-ठाक कंडीशन में इसको देना है। तो ऐसी सोच कभी देखी नहीं। तो अपनी कोशिश ये रहती थी कि द मोमेंट आई एम टेकिंग आउट मनी फ्रॉम माय पॉकेट टू स्पेंड, आई यूज्ड टू थिंक इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा? मैं कपड़े धोने के लिए वॉशिंग पाउडर खरीद रहा हूँ, वो $1 का आ जाएगा, ₹50 का आ जाएगा, ₹100 का आ जाएगा। डज़न्ट मैटर, मैं अगर उसको जितना चाहिए उससे दुगना भी तिगना भी यूज़ कर लूँगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट इम्पैक्ट? मेरे बच्चों के लिए क्या बचेगा पानी जो है, कैसे डैमेज होगा इनसे? तो ये सब चीज़ों का कंसर्न करते-करते फाइनली 2014 आई क्विट दैट माय रेगुलर लाइफ़स्टाइल। और वहाँ से जब आया था छोड़ के, तो ये सोच के आए थे कि अब वो पैसा कमाने वाला काम तो हो गया जितना होना है। आई हैव इनफ ऑफ इट। अब जो भी काम करना है उसका मोटिव पैसा कमाना नहीं होगा, कि मैं अपने बच्चों के लिए एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट छोड़ के जाऊँ, उनके रहने लायक कोई जगह छोड़ के जाऊँ। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अगर मेरे बच्चों के लिए हवा, पानी, साँस लेने लायक, पानी पीने लायक ना हो, हवा साँस लेने लायक ना हो, तो उनको मैं एक तो मानस जी, यहाँ से आगे मैं शुरू रखूँ या अभी ब्रेक लगाएँगे? हाँ, आप खेती विरासत मिशन के बारे में थोड़ा बताएं। ज़रूर। आप जी। एक तो इंट्रोडक्शन उसका। जी, तो खेती विरासत मिशन पंजाब में जो काम कर रही थी कि किसान जो है, खेती करने वाले, उनको नुकसान हो रहा है, और उसके बाद जो कंज़्यूमर वो खाना खाएगा, ज़हर वाला खाना, उसको नुकसान हो। पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत ही डेंजरस चीज़ है। इसको कहीं न कहीं रोक लगानी पड़ेगी। और अगर हम कोई किसान कन्विंस हो जाता है कि ये जो है अनसस्टेनेबल है, मान लिया, तो हाउ वी कैन डू दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो उनको वो रास्ता दिखाना आगे। तो ये काम खेती विरासत मिशन में हम लोग कर रहे हैं। सॉरी राजीव जी, आप प्लीज कंटिन्यू करिए, ये कुछ रिकॉर्डिंग को लेकर के इशू हो रहा है, जी, जी। पर आप प्लीज बोलते रहिए। तो जब किसान ने अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग करके अपनी सामान पैदा कर लिया, तो उसको बेचना एक बहुत बड़ा इशू है। स्पेशली पंजाब की अगर हम बात करें, तो पंजाब में पंजाब का किसान पूरे इंडिया के, वो उन 30-40 साल में हमारा किसान खुद सामान बेचना तो वो भूल ही गया है। तो उसको वो सपोर्ट प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी था कि वो सामान बेचना कैसे है। तो उसके लिए हमने कंज्यूमर्स के साथ नेटवर्क क्रिएट किया। हमारे वी आर फुल्ली लेडन विद पॉइज़न, तो आपको उससे निकलना पड़ेगा। तो पीपल सेड व्हाट यू आर सेइंग इट मेक्स सेंस, हम समझते तो हैं बात को, पर कहाँ से मिलेगा वो ज़हर मुक्त भोजन? तो हमने बोला कि हमारे पास किसान है जो जिनके पास ऑर्गेनिक खेत हैं, वो ऑर्गेनिक सब्जियां दालें उगाने को तैयार हैं, प्रोवाइडेड यू आर रेडी टू बाय फ्रॉम देम एंड वी विल ऑफर यू दिस लिंक। तो ऐसे हर शहर में हमने ग्रुप्स क्रिएट किए 2015 ऑनवर्ड्स। तो वो पीपल वर वेरी एंथुसियास्टिक। तो वो ग्रुप्स क्रिएट करके उनको डायरेक्टली किसानों के साथ जोड़ा गया। तो ऐसे हमारे किसानों का सामान बिकना शुरू हुआ। तो कोरोना पीरियड तक तो हमारी रेगुलर मार्केट्स ही लग रही थी, जहाँ पे वीक में वन्स और ट्वाइस हमारे फार्मर्स आते थे, कंज्यूमर्स उनसे सामान लेके जाते थे। उसके बाद मॉडल हमने थोड़ा शिफ्ट किया कि कोरोना में जब बंद हुआ था, तो बाय द टाइम हमने ऑलरेडी हमारे किसानों को काफ़ी हद तक ये व्हाट्सऐप के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर अपना सामान कैसे लोगों से कॉन्टैक्ट करके बेचना है, वो उनकी ट्रेनिंग पूरी कर दी थी। तो उसके बाद से अब वो लोग खुद जिस दिन सामान लेके आना होता है, व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएट किए हुए हैं। सुबह वो मैसेज डाल देते हैं कि ये सब्जी लेके आज आफ्टरनून में 3 बजे आ रहे हैं। तो बाय द टाइम दे रीच दैट प्लेस, उनका 70-80% सामान प्री बुक्ड होता है। बहुत अच्छा, बहुत। मैं लेट मी पॉज यू एट दिस राजीव भाई, मैं थोड़ा सा आपको, मैं इस इन सब चीजों के बारे में और विस्तार से सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। जी, थोड़ा होल्ड दिस थॉट। अभी हम अपने और पैनलिस्ट से बात करते हैं, उनका इंट्रोडक्शन
भी लेना चाहूँगा। सो पर ये जो आपका मार्केट वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत अच्छी लर्निंग है इसके अंदर हम सबके लिए. Let me come to that. So let me come to Ilyas, and Ilyas, quickly tell briefly about your life journey and about your organization. Hello. Hi. Can Hi. you hear me? Yes, जी yes, जी very good. Thanks, Manas, and thanks for Pharmacity Alliance to invite me for this program. Myself, Ilyas. I am from Kerala. I will speak in English. I am comfortable in English. Is it okay? Yes, yes, please. Okay. So my journey started 22 years before with Kerala Jaiva Karshaka Samiti, Kerala Organic Farming Organization. Now I am currently president of Organic Farming Association of India, but here I am presenting about the Jaiva Karshaka Samiti works mostly. Myself, I am doing organic farm and different crops, especially I am cultivating rice, different variety of rice, around 74 variety we are conserving here, and around 20 variety tubers. And we also made an agroecological farm. We call Pureida Krishi, local Nyatuvela, local climate resilient farming. And also there are a lot of other varieties of vegetables, fruits, and tubers we are growing. And we have cow also. Right? So we commercially we are doing chili, mainly local variety of chili we are growing. This is about the farm I am doing. And then about Kerala Jaiva Karshaka Samiti, brief about Jaiva Karshaka Samiti is an organic farmers and also consumers movement in Kerala. It started in 1992. It's a totally democratic and voluntary membership based organization working from panchayat level for promoting organic farming, environmental protection, and natural health and happiness for our societies. Mostly the members are organic farmers, consumers, and environmentalists, naturopathy people are our members. So our vision is environmental friendly living organic life by transforming Kerala as a fully organic farming region. So main objective to transform our food production system to totally organic way, and it should get the good fair price to farmers, and it should get the healthy food to the community through environmental friendly sustainable farming systems. And KGKS was toward create alternative lifestyle models through constructive work and remaining itself as an organic farmers pressure group to ensure the light farmers. We also work with the government, local government, panchayat level and block panchayat level with the government local bodies. And it's started in 1992 as an informal group. Then later we understand that we should focus on the more in the district and panchayat and local level. Then 2000 from 2010 it started to make the district committee, taluka committee, and panchayat level committees. Now we have around 10 districts very actively working, and also around 32 taluka committee and around 50 local panchayat level committees we have, and other some municipality and corporation level committees are there. So major activities we follow, actually we do organize lot of farmers meet, different kind of farmers sangamams, and locally district level and state level also. State level it will be 2 or 3 days. For the last 32 years we are doing state level organic farmers meeting every year. Around 500 to 1000 people attend for the state level sangamam, and the district and state, local level around 50 to 100 farmers or consumers will attend. And also we do some campaign work, especially this poison free home. So in Kerala the health issues are very high, and all most of the products we are getting from outside other states, and it will take time to reach here, and it will contaminated by pesticides and a lot of other adulterations. So we have high level cancer patients, and also lot of kidney patients and diabetic patients. So we do organize poison free home for awareness programs, local food diversity festival, and also to know more about the healthy food to people. What is the healthy food, how we can grow our own food. And also we train organic farming training course and different kind of course, 1 day course, 2 day course, and 20 weeks course we organize in different level. And also we do organic local market with the consumer society. We have around 10 districts. We have local organic market, our own name, and local with the local group and consumer group. We have a different district level farmers to consumer direct farmers. It's a weekly market also there, and daily market.
also there. And we do publishing different books, publications, especially One Earth, One Life magazine. One Earth, One Life is our environmental organization, our mother organization. 1986, last 35 years around, we are continuing every month. We have magazine. That magazine cover all these organic farming, environmental and health related articles. And then also we do biodiversity conservation activities like paddy field protection campaign and water conservation program. And also with GM campaign, what is the GM and what is the problem about genetically modified seeds. That kind of campaign work and strike also, if we need to do, we join with other organization, we do strike kind of small activities also. So this is about the main. And Jaiva Karshaka Samiti have now a lot of, especially that youngsters are coming and that new entrepreneurs and academicians are now joining. So our structural level, we do all a year annual general body meeting and district level general Let me body. pause you here now, because Okay, I'm this, sure there's a lot for you done, to yeah. speak. But Yeah, I done. also see there's a lot of similarity between what's happening at Kheti Virasat Mission and also at the Kerala Organic. What do you call it? Please again say that. Kerala Jaiva Karshaka, you can call KJKS. 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 Yeah, there's so much similarity and serendipity is happening. And अभी मैं करण भाई से पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे यहाँ पे आए, आपकी क्या बैकग्राउंड है, संक्षेप में बताएं, और क्या काम कर रहे हैं आप, आपकी संस्था के बारे में बताएं। आपका माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। करण, आपका माइक ऑफ है। अरे I have to unmute him. Let me give Karan permission. थैंक यू अतुल भाई। नमस्ते सभी को, मेरा नाम करण है और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। ये पूरा जो सीरीज रहा है हमारा अलग अलग टॉपिक्स पर जो चर्चा हुई है, ये बहुत ही बेहतरीन रही और आज मुझे मौका मिल रहा है बोलने का। तो मैं ब्रीफली अपनी एक बार जर्नी बताता हूँ और जो प्रोजेक्ट हमारा अभी चल रहा है उसके बारे में चर्चा करता हूँ। तो मैं शुरू करना चाहूँगा तब से जब मैं अपने टीन एज में था और हमारे गांव में और हमारे आसपास का जो वातावरण है वहाँ पे ज्यादातर यूथ लोग जो है वो आर्मी में जाने का सोचते हैं। तो मैं यूपी में शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव पड़ता है और वहीं पर मेरी शुरुआती जीवन गुजरा है। तो मुझे भी वहां से दोस्तों को देखकर और खास करके टीवी में देखकर मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि मुझे आर्मी में जाना है और देश की सेवा करनी है। और उसी दिशा में मैंने अपना कदम जो है वो बढ़ाना शुरू कर दिया। मेरे पिताजी एक किसान है और खेती बाड़ी का मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है, क्योंकि उनके साथ भी मैंने खेती की है और जब वो काम वगैरह कहीं बाहर जाते थे तो खेत मैं भी संभाला करता था। तो लगाव भी हमेशा से रहा है खेती से। लेकिन कहीं ना कहीं किस तरह से ये पेस्टिसाइड केमिकल्स ये सब जुड़ गए और कभी मैंने इन्हें उस तरह से देखा भी नहीं कि ये हमारे हेल्थ को कोई नुकसान भी करेंगे, क्योंकि दवा बोल के बेचा जा रहा था मार्केट में। जब कोई बीमारी लगती थी तो हम जब जाते थे वहां पे शॉप पे जहाँ ये सब मिलता है तो वो बोलता था कि ये दवाई है, ये दवाई ले लो। तो हम तो उसको दवा सोच के अपने खेत में डालते थे। तो आर्मी का जो है वो पूरा मेरे अंदर जुनून था, उसकी तैयारी कर रहा था। इसी दौरान जो है उदयपुर एक बार जाने का मौका मिला। उदयपुर में शिक्षांतर एक जगह है, तो वहां जब गया तो वहाँ मनीष भैया हैं, उनसे मुलाकात हुई। तो वो क्या है कि मनीष भैया का ऐसा अक्सर रहता है कि जो भी यूथ जाते हैं वो उनसे थोड़ा लीक से हटके क्वेश्चन पूछते हैं। तो उन्होंने मुझसे भी पूछा कि क्या कर रहे हो जीवन में। तो मैंने कहा कि मैं अभी आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो उन्होंने कुछ ऐसे 4-5 क्वेश्चंस पूछे कि क्यों जाना चाह रहे हो, सच में कौन सी चीज है जो तुम्हें इंस्पायर कर रही है वहां जाने की, और तुम्हारे दिल की आवाज बोल रही है क्या तुम्हें वहां पर जाना है।
तो वो तुरंत तुरंत तो मैंने उन्हें कोई जवाब दिया नहीं, क्योंकि टीवी का और टीवी पे दिखाते भी है ना सब ऐसा एकदम हीरो वाले स्टाइल, वर्दी होती है और ये सब होता है, तो वो सब मेरे ऊपर मतलब एक युवा के ऊपर कैसे वो चीजें काम करती हैं वो भी मुझे समझ में आया। तो तब तो मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया, पर हाँ वो सारी चीजें मेरे अंदर चलती रही। और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार सच में असली जो लड़ाई है या असली जो सेवा है वो कोई जरूरी नहीं है कि बंदूक लेके मैं बॉर्डर पे जाके खड़ा हूं तभी होगा। मुझे लगता है कि केमिकल से अगर मैं अपनी मिट्टी को बचा पाया, या जो मैं ज्यादातर किसानों को अगर जागरूक कर पाया, मैं कंज्यूमर तक अगर अच्छा शुद्ध भोजन पहुंचा पाया, तो शायद वो भी मेरे लिए एक सच्ची देश सेवा है। पर वही है कि वो गट्स नहीं थे, वो जुनून, मतलब कैसे उसको मैं करूं, क्योंकि हाँ सोसाइटी में ऐसा भी है ना कि अभी पढ़ लिख लिया है, अब देखो किसानी कर रहा है, पिताजी भी नहीं चाहेंगे कि मैं किसान बनूं, ऐसी एक मेंटालिटी हो गई है। तो ये सब चीजें, ये उथल पुथल काफी चल रही थी। लेकिन फिर शिक्षांतर के माध्यम से ही मुझे एडवांस लेवल पे एग्रीकल्चर सीखने का थोड़ा और मौका मिला, जिसमें पर्माकल्चर के बारे में जाना मैंने। यहाँ से मुझे अलग अलग जगह वर्कशॉप्स के लिए भेजा गया। फिर धीरे धीरे मेरा पूरा जो है मन डाइवर्ट हुआ, और मैंने खेती के थोड़ी गहराइयों को और जानना समझना शुरू किया। किताबी ज्ञान तक नहीं, बल्कि अ, कैसे लोगों के जीवन से ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि भोजन तो हम सभी करते हैं, और हमारा जो कंज्यूमर है वो कोई ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर तो सब हैं, वो कॉरपोरेट के लोग भी मैं हैं, वो करण, सरकारी। मैं सॉरी, मैं इंटरप्ट जी करूंगा। जी आपको मैं मिला हूँ बहुत अच्छी तरह से, और आप खेती के बारे में इस समय बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल पे आ चुके हैं। अब मुझे फटाफट 2 मिनट में बताइए आप फार्म वर्सिटी के बारे में क्योंकि हमारे पास समय। जी जी। तो हाँ, अभी मैं जो है झाड़ोल में एक फार्मवर्सिटी सेंटर को देख रहा हूँ, और उस सेंटर पे हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ के जो आदिवासी युवा हैं, तो जो चीजें मैंने मेरे जीवन में फेस की हैं वो सारी उनके जीवन में भी चल रही हैं, वो भी उसी एज ग्रुप में है। तो उनको कैसे वो डेली वेजेस के लिए बाहर जाया करते हैं, गुजरात में, उदयपुर में या आसपास के लिए, तो वहां ना जाकर के अपने ही खेत में कैसे वो खेती से जुड़ करके और जो इनकम वो बाहर कर रहे हैं वो अपने यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग कुछ ट्रेनिंग्स उनको प्रोवाइड करते हैं, और साथ साथ में हम एक लोकल लेवल पे किसानों का एसोसिएशन बना रहे हैं। और जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिटी बिल्डिंग का, तो कंज्यूमर्स का और जो सक्रिय लोग होते हैं समाज में, उनके हम लोग एसोसिएशंस बना रहे हैं कि कैसे हम लोग जो है दोबारा से सबसे पहले तो हम पूरा अपना जो झाड़ोल का एरिया है उसको ऑर्गेनिक बनाएं, और कैसे धीरे धीरे हम देश में भी अलग अलग जगह ये जो ऑर्गेनिक की मुहिम है, या जो प्राकृतिक खेती की मुहिम है, या शुद्ध भोजन लोगों तक पहुंचे उसकी मुहिम को पहुंचा सकें। लेट मी मैं वापस आऊंगा आपके पास जाडोल के बारे में और जानने के लिए, क्योंकि ये जो क्षेत्र है आपका ये बहुत यूनिक है पंजाब और केरला के कंपैरिजन में। क्योंकि जी राजीव जी क्या कहते हैं, पंजाब में एक जो हमारी जो पॉपुलेशन है या जो एक यूथ है वो वेस्ट की तरफ, एक आपने कल भी बताया कि सब देश छोड़ के जाना चाहते हैं। और सिमिलर सिचुएशन अगर सेम नहीं भी है तो हम केरला में भी कह सकते हैं कि एक लार्ज पॉपुलेशन केरला की बाहर काम करती है। एक केरला मिडल ईस्ट में बसा हुआ है, जैसे कि एक पंजाब इस समय कनाडा और ऑस्ट्रेलिया यूके में बसा हुआ है। लेकिन जो करंट के साथ सिचुएशन है वो एक ट्राइबल एरिया से की बात है। और वहाँ का यूथ जो है अभी सिर्फ अहमदाबाद और उदयपुर और बहुत हुआ तो मुंबई तक जाने के बारे में बात कर रहा है। तो ये एक है। अभी तक मुझे ऐसा लगता है इन कहानियों को सुन के कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज लाइक रियली नाइस। आपके फार्मर्स मार्केट चल रहे हैं, किसानों का सामान सब बिक जाता है। लेकिन क्या एक चैलेंज आप बताना चाहेंगे राजीव जी, जो सच में खड़ा है आपके सामने? अगर हम कम्युनिटी की बात करें, कम्युनिटी एक लोकल इकोसिस्टम बनाने की बात करें, तो क्या
कुछ एक दो जो की चैलेंजेस हैं आपके, जो पहली बात तो एक कम्युनिटी क्यों बनाना चाहते हैं और क्या चैलेंज है उसमें। लेट्स टेक इस क्वेश्चन के साथ काम करते हैं थोड़ा। आप म्यूट हैं राजीव जी। यस। क्यों का जवाब तो बड़ा सीधा सा है कि ये जो अभी केमिकल फार्मिंग है ये अनसस्टेनेबल है। जो 20 साल में ही 30 साल में ही दिख रहा है कि अनसस्टेनेबल है, तो कितने साल और खींच के ले जाएंगे। तो सस्टेनेबल फार्मिंग तो वही है जो 1000 साल से या 10,000 साल से चल रही थी। तो वो फार्मिंग पार्ट तो वो उधर शिफ्ट होना ही पड़ेगा। तो वो तो क्लियर ही है। अब पंजाब के केस में मैं बोलूँ तो एक तो मैं बोलता हूँ कि पानी को लोग वरदान मानते हैं, तो हम तो कई बार पानी को अभिशाप मानते हैं, कर्स मानते हैं पानी को कि खेती के मामले में हमने देखा है कि जहाँ-जहाँ पानी पहुँचा है, वहाँ-वहाँ केमिकल्स पहुँचे हैं। पंजाब से राजस्थान में जहाँ तक पानी पहुँच गया है, वहाँ तक पूरी ज़हर वाली खेती हो रही है। उनकी राजस्थान में भी वहाँ पे खेती में कोई फ़र्क नहीं रह गया पंजाब की खेती से। जैसे ही राजस्थान में आगे चले जाओगे जहाँ पानी नहीं मिल रहा है, तो वहाँ सब कुछ ठीक-ठाक है। आप कैनाल की बात कर रहे हैं। जी, कैनाल इरिगेशन से जहाँ-जहाँ पानी पहुँच गया या बोरवेल से पानी जहाँ भी अवेलेबल है, तो जहाँ पानी मिल गया तो वहाँ पे केमिकल फार्मिंग शुरू हो गई। तो ये पूरे इंडिया की ये सिचुएशन है। तो अब दूसरी बात आ गई कि पंजाब का जो चैलेंजेस वाली बात है, तो 30-40 साल पहले जब ये केमिकल फार्मिंग शुरू हुई और साथ में सरकार की ओर से एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट शुरू हुई, तो उससे किसानों की इनकम एकदम बढ़ गई। शायद 10 गुना बढ़ गई या 5 गुना बढ़ गई, बट उस टाइम ये सिचुएशन थी कि कई किसान जिनको सरकारी टीचर की या और सरकारी डिपार्टमेंट्स में जॉब्स मिली हुई थी, वो जॉब्स मिली हुई जॉब्स छोड़ दी कि वी डोंट नीड टू वर्क अंडर एनीबॉडी, हम नौकर नहीं बनेंगे, हम तो मालिक रहेंगे। तो इतनी शाही ज़िंदगी थी उनकी, इतना ज़्यादा पैसा आ गया था। अब वो जब ज़्यादा पैसा आ गया था, तो उनका लाइफ़स्टाइल भी अर्बन लाइफ़स्टाइल वाला होना शुरू हो गया। ये बात मैं कहूँगा 75 ऑनवर्ड से। तो 75 से 85 में पंजाब के फार्मर का लाइफ़स्टाइल सिटी वाले आदमी से कोई ज़्यादा डिफरेंट रहा नहीं। अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे उसकी इनकम उसकी ग्रोथ इनकम ग्रोथ 5% हो रही है, शहर वाले आदमी की इनकम ग्रोथ 10% से 20% हो रही है या 30% हो रही है। तो अब वो किसान की स्ट्रेस लेवल इतना हाई है कि लाइफ़स्टाइल वो अपना चेंज नहीं कर सकता और लाइफ़स्टाइल अपना वो सिम्प्लीफाई नहीं कर सकता कि उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो जाए। तो उस चक्कर में शायद पंजाब में बहुत ज़्यादा या सबसे ज़्यादा सुसाइड्स भी हो रहे हैं, क्योंकि वो उसी लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करने के लिए उसने कर्ज़े भी लेने शुरू कर दिए। अब फाइनली यहाँ ये हालत है कि जिस किसान के पास 20 एकड़ 30 एकड़ लैंड है भी है, तो वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है, उसको नहीं है, उसको यही है कि नहीं, इससे कुछ नहीं बनेगा, मैं तो अपने बेटे को बाहर भेजूँगा। और जैसे मैंने कल भी बोला था कि हमारे टाइम में जो 8th 10th ग्रेड में कोई बच्चा एकेडमिकली अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, तो उसको टारगेट यही दिया जाता था कि आपको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। आज की डेट में आप 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड के बच्चे से पूछ लो, उसका बोलना ये है कि मुझे आईलेट क्लियर करना है और विदेश में जाना है, कनाडा जाना है या वहाँ जाना है। तो मेरे खुद के पास, क्योंकि मेरा सबको मालूम है कि ये कनाडा से वापस आया है, तो बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि हम अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं। तो मैं बोलता हूँ, भैया मेरे से क्यों पूछते हो? आपको पता है मैं वापस छोड़ के आया हूँ, अच्छी-भली मेरे पास जॉब थी। तो मैं आपके बच्चे को कैसे बोल दूँगा कि आप वहाँ पे चले जाओ? और आपने डिसाइड पहले से किया हुआ है कि आपने भेजना ही है। तो डोंट आस्क मी फॉर एडवाइस, मेरी एडवाइस तो तब लो जब आप ओपन माइंडेड हो, आपने डिसाइड अभी करना है। जब आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि आपने भेजना ही है, तो फिर क्यों मेरे से पूछते हो? नहीं, नहीं क्या करें? अब यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा बहुत कुछ है। तो तो कह सकते हैं कि मतलब डू आई हेयर कि कम्युनिटी का जो एक कॉन्सेप्ट है एक लोकल इकोसिस्टम का, वो बहुत ज्यादा हिल गया है या बहुत वीक हो गया है। मतलब उसमें लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो खत्म हो गया है कि हम अ, एक नरिशमेंट होता है अपनी स्पेस में, अपनी जगह में। वो एग्ज़ैक्टली, मतलब वो जो पॉलिटिकल जो यहाँ पे सेटअप है, उनको लगता है कि ये पॉलिटिकल सिस्टम बहुत करप्ट है। तो अगर मैं उनको बोलता हूँ कि भैया तुमने बाहर जाके देखा है
क्या पता वहां जाके इससे भी ज्यादा करप्ट सिस्टम मिले। नहीं नहीं, हमको मालूम है वहां ठीक है सब कुछ। तो So this is one big problem challenge and इसमें क्विकली मुझे दो चीजें पूछनी है आपसे पंजाब के बारे में। एक तो कास्ट डाइवर्सिटी जो एक अपर कास्ट लोअर कास्ट का है, दूसरा इकोनॉमिक जो एक डिफरेंशिएशन है छोटा किसान बड़ा किसान गरीब और अमीर इकोनॉमिक तरीके से, और तीसरा ये जो ड्रग्स का जो एक इशू था जो जी अभी भी जी है, जी जी और बहुत सारी चीजें जैसे कैंसर कैपिटल ऑफ द कंट्री है, इस तरीके के नाम दिए हुए हैं, जी इनफर्टिलिटी इश्यूज बिकॉज ऑफ द एक्सेस एक्सपोजर टू पॉइजन। तो मतलब ये सारे चैलेंजेस तो हमको दिखते हैं। एज अ जी। कम्युनिटी वीवर, एज अ खेती विरासत मिशन, आप क्या इंटरवेंशन है जो आप लेके आ रहे हैं इसमें, एक दो स्टेप्स जो आप इन चीजों को रिजॉल्व करने के लिए देखते हैं कि आप कदम उठाए हैं आपने, उनके बारे में जी। थोड़ा बताएं। तो देखिए, कास्ट सिस्टम की जो बात की, वैसे पंजाब में मुझे नहीं लगता कि मैं अगर बाकी कंट्री से कंपेयर करूँ तो बहुत ज़्यादा वो इशू यहाँ पे है। तो बट फिर भी जो थोड़ा बहुत है, हमने हमारा साउदर्न पंजाब एरिया में हमने जहाँ पे वो पुअरेस्ट ऑफ पुअर फैमिली, सो कॉल्ड लोअर कास्ट फैमिलीज, लैंडलेस लेबर फैमिलीज, उनके अंदर कैंपेन्स चलाई हैं। उनको क्या किया है हमने, क्योंकि उनके पास लैंड नहीं है, लैंडलेस लेबर हैं, पर खेती उनको आती है। उनको किचन गार्डनिंग के ऊपर पूरी ट्रेनिंग दी। तो सबसे पहला इम्पैक्ट तो उसका ये पड़ा कि काफ़ी लोग हमें बोलते थे कि हमारे बच्चे बहुत सारी सब्जियां जो खाते नहीं थे, वो वाली सब्जियां अब खानी शुरू कर दी हैं उन्होंने। फिर बहुत सारी सब्जियां वो बोलते थे कि हमने कभी खरीदी नहीं थी क्योंकि हमारी खरीदने की कैपेसिटी नहीं है, अब हम सारा साल भरपेट सब्जियां खा रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट सीधा-सीधा उनको अपनी सेहत में दिख रहा है। जो डॉक्टर के पास जा रहे थे, नहीं जा रहे हैं, तो वो सारा उनको उसमें बहुत चेंज नज़र आई। अब बहुत सारी लेडीज़ ऐसी थी जिनको घर से बाहर जाके काम करना जो है कल्चरली उनको ठीक नहीं लगता था, वो नहीं जाती थी। तो और एक इनकम के ऊपर उनका गुज़ारा नहीं चलता था। अब उनमें से बहुत से लोगों ने शौक से खेत सब्जियाँ पैदा करके अड़ोस-पड़ोस में सब्जियाँ बेचनी भी शुरू कर दी। तो आप ये समझ लीजिए कि ₹2000 महीने का जो उनका सब्जी का खर्चा होता होगा पहले, या 1000 का भी होता होगा, वो खर्चा बंद हो गया। ऊपर से उन्होंने 2 से ₹3000 अर्न दिया। तो ₹5000 का इकोनॉमिक डिफरेंस जो है एक मज़दूर आदमी के लिए बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो ये पिछले 10-12 साल, 15 साल से लगातार वहाँ पे कुछ ना कुछ चलता है। कोई 4 गाँव अभी ले लिए, वो 3 साल का प्रोजेक्ट चलाया, फिर 4 गाँव दूसरे और ले लिए, वहाँ प्रोजेक्ट लगाया। उनको पूरा वेस्ट मैनेजमेंट का गाइडेंस देनी है, सीड अपनी ओर से देने हैं। तो ये एक सक्सेसफुली वहाँ पे इस चीज़ पे प्रोजेक्ट चल रहा है। बाकी मुझे लगता है कि कॉस्ट या और जो आपने चैलेंजेस बताए ना, ड्रग्स वाला तो है, उससे बड़ा पंजाब का जो बाकी इंडिया से मैं चैलेंज देखता हूँ, डिफरेंस है कि यहाँ पे जो एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट एमएसपी मिलता है, उसके चक्कर में हम जितनी भी किसानों से जब बात करते हैं ऑर्गेनिक खेती की, वो सारी बात सुनते हैं, समझ लेते हैं, मान भी लेते हैं। बट दे सेड भई गेहूँ और चावल जो हम पैदा करेंगे वो तो सरकार उठा रही है, पहले दिन हमें उठाएगी और विदिन आवर्स उनके अकाउंट में पेमेंट होती है। तो ये जो हम पैदा करेंगे ये कौन उठाएगा? तो जैसे ही हम बोलते हैं कि नहीं आप बेचोगे, बोलते हैं नहीं छोड़ो, हम नहीं इस पचड़े में पड़ने वाले। हम वैसे ही करेंगे जैसे पहले से करने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कंपेयर टू दिस, जिनको एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट वाली इश्यू नहीं है, तो वो पहले से ही मेहनत कर रहे हैं बेचने में, उनको स्विच करने में इतनी दिक्कत नहीं है। ये So ये MSP बिकॉज पंजाब के अंदर प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो मंडी सिस्टम है, देश की 80-90% मंडी पंजाब में ही कॉन्सेंट्रेटेड है एक्चुअली। सरकार सरकार ने कमिटमेंट दी हुई है कि वो व्हीट, पैडी जितना पंजाब में किसान पैदा करेगा, वो मंडी में जाएगा, मंडी से सीधा सरकार उठाएगी, विद इन आवर उसकी पेमेंट उनके अकाउंट में होती है। और 1-2 दिन भी लेट होता है ना, तो रोड्स पे ब्लॉकेज लगने शुरू हो जाते हैं। आजकल हो रहा है वो ड्रामा यहाँ पे। So you mean to say that दीज़ आर कैश this क्रॉप्स। this is a this is detrimental to your community building, whereas जो southern पंजाब में
जो लो इनकम वाले लैंडलेस फार्मर्स थे, वहां पे आप एक कम्युनिटी क्रिएट करने में ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। नहीं, वो तो और देखिए, वो तो हुआ हुआ कि एक जैसे जितना घर का प्लॉट होता है, ऐसे छोटा-सा एक प्लॉट में किचन गार्डन बना लिया। तो उसको इससे तो कंपैरिज़न नहीं कर सकते, वो तो एक फैमिली का हमने लेवल ऊपर कर दिया। पर वो देखिए ना, सीट शेयरिंग भी हो रही है। जी, जी, देखो, जी। जब मैं आया था एक बार वहां पे विजिट करने के लिए, तो जी, आपस में एक सेंस ऑफ कम्युनिटी थी। जी। बैठे थे, एसएचजी काम कर रहे थे, प्रोसेसिंग हो रही थी, तो एक तो जी, कुछ जी। कम्युनिटी एक्शन चल रहा था। लेट मी टेक दिस टू इलियास नाउ। इलियास, हाउ डू यू टेक द सेम challenges, and please share key action steps you have taken. For example, there is a disparity in the income, then there is a health issues which you talked of, and then you talked of, uh, I think the land size in Kerala and the land holding in Punjab, they are quite different from each other. So intensity. So as a community step, like building a community, like since 1992, possibly one of the oldest organizations running in the organic space will be KJKS. KVM is around 15 years, 16 years old now. 25 plus, 25 years old. KVM is 25 years old. Yes. So basically, I'm Legally talking of, 20 year old. मैं मैं 5 साल Legally. पुरानी बात कर रहा हूँ फिर. जी, So जी, जी। coming back to Ilyas, please share your challenges and key steps which you have taken, some of them. The main challenges we are facing this lack of government support for the farming system, especially food crop. So we grow mostly around 64% our crop is the cash crop, especially rubber, tea, coffee, and arecanut. So main focus on the cash crops, but the cash crop also nowadays it's reducing. So within last 40 years, our rice cultivations for around 80% rice cultivation reduced. So that's why now in 2018 when the flood came, it affected it very much because we now lack of these water bodies. So rice cultivation, our most of the rice is the lowland cultivations. So that reduced around 80%. So it's a rice field with connected with the river and canal. All these ecosystem now collapsed. That is the main issues, and government is not supporting for the rice farming systems. That's the one important issues. And other like millets also, we lost almost around 99% of millet cultivation, and also pulses cultivation also we lost, and the tuber cultivation also we lost, and then now only vegetables and some rice field is there in Alappuzha districts, and 2-3 districts only mostly that. Now you know that climate change is affecting in Kerala, mainly in Wayanad issues last year happened, and 3-4 years also lot of landslide in from 2018 it is happening. So all these our ecosystems related to the farming system. So that is the farming system destroyed, it affecting our ecosystems. That's the main challenges we are facing, and government is not doing. Government want to show always to Kerala is first. Kerala is first for education, Kerala first for health, and that's why now we are not getting any fund support from any agencies. So these thoughts are very because even if we have started with a project with any organization, any NGOs, any fund, they tell why you want fund. You are all okay. You have lot of Gulf money. Even though people are going to Gulf countries, but they are coming back. They are not staying there like other these countries, Canada or other UK. But most of the Gulf countries, they don't stay there. They will come back. They will stay here only. Most of the income they have earned, they will put here. And the business mostly what is happening after that, they will come back and they will start the hotels. And the hotel is that this Middle East food and the fast food culture. And that's why now this food culture is totally changed, that the people don't know what they are eating. They don't know what they're coming to inside. That's why we have, if you compare with any other states, we have that from 1 lakh people around, I think, sorry, around 1,50,000 ratio, so cancer patients, and diabetic is around 20% diabetics. These all health issues are one another issues. Even though we have multi these hospitals, and
we have a lot of health systems there, but still we are facing a lot of health problems. And another big issues we are main problem about the lack of laborers and the labor cost. The highest labor cost in India, in Kerala, per day for man around 900 to 1,000 rupees per day, and then So woman. let me come to this, that these are the challenges which are also at a larger, let's say, overarching challenges in the state, in the space, like same in the Punjab also, same similar in Kerala also. Different triggers, but health, economics, climate challenge, and all that. As an organization, at KJKS, what is that which you are doing? I want to explore this at a, let's say, at a community, at a village level. What have you set up? What kind of mobilization, or let's say new people coming into your system? Are you able to attract people to join, or what do you do to do that? Yeah. The thing is that we have a kind of voluntary system is working very well here, and because we want to promote sustainable farming, sustainable living system, always telling. So we also thought about the sustainable organization system. So most of the program we do on the with the local resource only. Even if you do 3 days program, even if that expense, we will rise from the local level only. So this is the people also most, I think 100% our main executive committee or state committee, everybody is voluntarily working. So this motivation, people feel that these people are doing something for the society, so we have to contribute. So that is that motivation is working here in the local level. When we talk about all these issues, and they feel we have to also contribute for the organization. So that is from we have to achieve the every panchayat. We need to make our local groups, local village committees. That's our we want to achieve. So there are challenges because of this voluntary system. We cannot force anybody to in the particular time, particular this you have to organize this program, that program. We don't have any calendar, but we have routine programs there, and then that routine program is going on. And sometimes some issues will come, then we will work on that. So there are still we have the systems to report from local level to district level to state level, whatever the activities they have done. And also with the organization structure, now after the long experience about that organization structure, we made little smooth, and communications and approach of this each committees are there. It will be very positive kind of the decision making and democratic system. And then they change the every from local level to state level. Every year they change the these committee members. It's the main bearers. So that we can attract the new people to give the responsibilities. So we are always telling it's not only our responsibilities, everybody responsibility to take all together whatever the activities we have decided. So we will divide the after the decision making after any program, we will divide that responsibility to each other, and then we'll after that 2 or 3 weeks, we will tell them to report what you have done, and then what you don't done, what why you cannot done. That kind of the organizational structural system is now working. That is attracting by people, and also they are ready to join. And also one good things, if we compare with other states, people have not only their income not only related to organic farming. Some people from government side, and also some people from consumer side also helping us. That is the one thing, good thing. So they have, for example, about the Gulf countries, people coming back from there, they have money. They are ready to contribute such kind of activities for there. So that is why we can, I think we can organize a lot of programs each and every time. Every month at least, I think 10 or 15 programs we are organizing in different area. So that's how our many such village panchayat level committees? around 60 village committee, around 32 taluk committee we have now. 60 village 30 committees. 10 district committee very actively working. So today also some program is happening somewhere. That will continue every 2 or 3 days between some program somewhere it will happen. It's a
like a movement. Once it happen in one farmer's field, that another farmer will tell, next week we can, next month we can join there in our farm. That's kind of and then that farmer will give that whatever food or whatever that farmer will contribute. And then all this that coming and going expense people meet themselves. Maybe sometimes we will make a small fee or something for the expense for the big program. The small program we don't want, or mostly farmers will take care of. So for Okay. example, in a district, there if there is the 25 farmers, that one farmer will come in after 2 or 3 year, only one farmer field again it will come. So that Okay. kind of this routine is going on. Okay. Okay. Let me come to Karan. Karan, आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक कह सकते हैं रिमोट एरिया में है, मतलब जो चाहे वो एक हाईवे के पास में है, लेकिन ये जैसे ये दो ऑर्गेनाइजेशन स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं और आप एक ऑपोजिट एक माइक्रो स्पेस में काम कर रहे हैं, आप एक टाउन लेवल पे या विलेज, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है पहले तो ट्राइबल कम्युनिटी के साथ? तो वो एक कम्युनिटी वर्ड ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा उसमें बताएं कि क्या उसमें क्या जुड़ाव है और क्या खिंचाव है उनके अंदर। तो जैसे यहाँ पे जो एरिया है, ज्यादातर किसान जो है वो कम कम खेत है उनके पास, स्मॉल पीस ऑफ लैंड है। जब आप किसान तो बोल रहे हैं तो ट्राइबल किसान के बारे में ही बात कर रहे हैं, या ट्राइबल किसान है, हाँ ट्राइबल और जो किसान ही, ये दूसरे पूरा दूसरे किसान हैं जो नॉन ट्राइबल हैं? नॉन ट्राइबल काफी कम है यहाँ एरिया में, ये पूरा ट्राइबल हब जैसा ही है। अच्छा। तो जी, यहाँ पे भील और गरासिया दो ट्राइब्स हैं जो मेजर यहाँ पर हैं। ओके। बाकी जो नॉन ट्राइबल्स है वो सारे ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो स्कूलों में और इनमें सब में काम करे, वो लोग ज्यादातर बाहर से आए हुए हैं, या जैसे कुछ अच्छा। व्यापारी वर्ग हैं, तो वो तो कमर्शियल क्रॉप्स करते हैं। जी। हम्म। तो एक तो इनका ये छोटा है। दूसरा क्या है जो चैलेंज अभी मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा यहाँ कम्युनिटी में जो मैं भी फेस करता हूँ, वो ये है कि आज से कुछ साल पहले, 30-40 साल पहले यहाँ पे खूब मिलेट्स वगैरह उगाए जाते थे। पर अब जो है वो मिलेट्स की खेती जो है वो होना बंद हो गई है। अब उसके अलग अलग कारण हैं, क्योंकि मार्केट में डिमांड बंद हो गई है, और दूसरा ज्यादातर लोग जो हैं ये डेली वेजेस पे जाने लग गए, जो नए किसान आ रहे हैं, और इनको डेली वेजेस पे पैसे ज्यादा मिल जाते हैं, और खेती में समय लगता है, कोई भी आप क्रॉप करेंगे तो उसमें टाइम लगता है, तो उतना जल्दी पैसा आता नहीं है, तो ये लोग वहां चले जाते हैं। तो हुआ क्या है कि जो बुजुर्ग किसान हैं जिनके पास बहुत सारा ज्ञान है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जो बुजुर्ग किसान है जिनके पास बहुत सारा ज्ञान है, वो नई पीढ़ी को ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नई पीढ़ी उसको एडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। एक तो ये, और दूसरा जब मैं मिलेट्स की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ की एक ऐसे किसान महिला से मिला हूँ जो ट्राइबल हैं और जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष की है, और उन्होंने एक बड़े मंच पर ये बात भी बोली थी कि वो आज तक कभी हॉस्पिटल नहीं गई, और वो केवल 2-3 उन्होंने मुख्य मिलेट्स बताए जिनका वो सेवन कर रहे हैं। जैसे वो बोलती हैं कि मैं रागी की राबड़ी पीती हूँ, और एक दो और उन्होंने जो मिलेट यहाँ पे जो मुख्य रूप से उगते हैं उनके बारे में बताया कि मैं उनका भोजन खाती हूँ। तो वो कभी अस्पताल नहीं गया। और अभी का जब मैं सिनेरियो देख रहा हूँ तो यहाँ पे लोकल झाड़ोल में जो पीएचसी है वहाँ भीड़ लगी रहती है। पूरा जंगल का एरिया है, इतना सारा बुजुर्गों के पास ज्ञान है, इतने सारे नेचुरल हर्ब्स जानने वाले लोग हैं, लेकिन अब जो है धीरे धीरे वो सारा ज्ञान खत्म हो रहा है। तो उसको कैसे दोबारा से जोड़ा जाए, उस पर काम करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने अ, एक संगठन भी अपना अमृत अन्न के नाम से बनाया है, जिसमें हमने न सिर्फ किसानों को बल्कि ये जो दूसरे सभी जो ज्ञानी लोग हैं गांव के, और वो जगह को भी ऐसा बनाया कि नॉलेज एक्सचेंज कैसे हो सके, जहाँ युवा वर्ग भी आए और जहाँ ये लोग भी आए और ये आकर के अपना ज्ञान का आदान प्रदान करें, और एक दोबारा से जो कम्युनिटी बिखर गई है उसको हम कैसे जोड़ सकें, उसके लिए भी हम प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं।
जो आपका प्रोजेक्ट है फार्म वर्सिटी जाडोल में, जी उसमें आप हर 3 महीने में 15 फेलोज को लेके आते हैं। जी अभी आपके शायद चौथा बैच आपका चल रहा है। तो जी। आपको क्या लगता है कि ये जब आते हैं उस समय उनके अंदर आपस में क्या जुड़ाव होता है, और जब जाते हैं तो क्या कुछ बदलाव आता है इनमें, या कुछ आ, लगता है आपको ये कुछ एक कम्युनिटी बिल्डिंग हो रही है इसके अंदर? हम्म थोड़ा सा मैं इसको अलग तरह से आंसर करने की कोशिश करूंगा। जब हमने शुरुआत में फार्म वर्सिटी यहाँ पे जब लेकर आए थे और हम लोग युवाओं को खोज रहे थे, तो हमें बहुत दिक्कत आ रही थी। मतलब हमें युवा लोग मिल ही नहीं रहे थे, और जो मिल रहे थे वो 2-4 दिन के लिए आते थे और फिर वापस बिखर जाते थे। तो अ, हमने जो है फिर थोड़ी अपनी अप्रोच भी चेंज की। हमने फार्मिंग को कैसे हम थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना सकें, वो सारी चीजें इसमें ऐड की। और ऐसे लगातार धीरे धीरे इवॉल्व होते हुए आज हम लोग जो है 50+ फेलोज अभी हमारे पास हैं, जो आ चुके हैं। और बिल्कुल शुरुआत में जब ये आते हैं तब अपने एक अलग थॉट्स के साथ आते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा मतलब बाहर का जो ज्ञान है वो उनके ऊपर इतना ज्यादा हावी हो चुका है कि उन्हें अपना स्वयं का जो स्थानीय ज्ञान है, जो आदिवासी ज्ञान है, वो उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग जब लगातार यहाँ पर इन सारी चीजों की बात करते हैं, तो धीरे धीरे उनके जो थॉट लेवल में भी बदलाव आते हैं। तो हमने यही देखा है कि कुछ कुछ जो युवा आ रहे हैं वो 3 महीने के अंदर अ, उनके अंदर एक दोबारा से जुनून पैदा होता है, और उन्हें अपने कल्चर, जो ट्राइबल कल्चर है, उसके प्रति उसका एक नजरिया चेंज हो जाता है। उसको एक रिस्पेक्ट की तरह देखने लगते हैं, ना कि एक दबी हुई। क्योंकि बाहर हर जगह यही बताया जा रहा है कि अरे आदिवासी हैं, पिछड़े वर्ग हैं, दबे हुए हैं। तो वो उनके मन में वो सारी चीजों को भी हम बदलने की कोशिश करते हैं, और फिर उन्हें ये भी पता चलता है कि नहीं, हमारी एक रिस्पेक्टेड हमारी कम्युनिटी है। तो उसके प्रति उनका लगाव बढ़ता है। फिर जो अ, किसानों की गरिमा वाली बात है, उसके प्रति उनका रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। आपस में क्या अभी जैसे क्या 50-60 क्या युवा हैं टूल्स, क्या क्या टूल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, आ, इस बदलाव को ले आने के लिए या समझ को लेके आने के लिए? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जैसे जो बुजुर्ग किसान हैं, उन्हें हम इनवाइट करते हैं। वो अपना लाइफ जर्नी शेयर करते हैं इन सारे युवाओं के सामने कि उन्होंने कैसे कैसे अपना जीवन यापन किया और कैसे जड़ी बूटियों आधारित उन्होंने जीवन जिया। आज तक उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। दूसरा, कुछ ऐसे सक्सेसफुल किसान जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करके अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से चला रहे हैं, साथ में कुछ कुछ और लोगों का भी जीवन यापन चला रहे हैं, खाद बेचकर, भले ही पशुपालन करके, भले ही नर्सरी करके। तो उन लोगों की सक्सेस स्टोरी इनको पता चलती है, तो इन्हें लगता है कि क्यों मैं अननेसेसरी वहां गुजरात जा रहा हूँ 300 रुपए 400 रुपए प्रतिदिन कमाने के लिए। मैं मेरे घर पे इस तरह का कुछ शुरू कर सकता हूँ स्मॉल लेवल पे, जिससे मुझे इतना पैसा तो मिलेगा, साथ साथ में मेरा एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा, मेरे खुद की हेल्थ भी अच्छी होगी, मेरे परिवार की हेल्थ भी अच्छी होगी। ये उन्हें समझ में आता है। साथ में हमने इसमें कैसे इसको इंटरेस्टिंग बनाया, उसके लिए स्थानीय कुछ कलाकारों को भी जोड़ा है, तो उनके साथ हम लोग सत्संग वगैरह करते हैं। एक राम रसोड़ा हम लोग यहाँ पर किया करते हैं, जिसमें सेवा भाव कैसे हमारे अंदर आए, हम कैसे। तो उस राम रसोड़ा में हम लोग मिलेट्स से कुछ अच्छे व्यंजन बना करके और झाड़ोल में अलग अलग जगह लोगों को सर्व करते हैं, खिलाते हैं, और अ, बड़े प्यार से लोगों को ये करते हैं। तो इस तरह से इंटरेस्टिंग चीजें जोड़ी हैं, तो उससे अब उनके अंदर ठहराव आया है, वो जुड़ते हैं हमारे साथ। बहुत बहुत बढ़िया। राजीव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि केवीएम में ऐसे इंटरवेंशंस या ऐसे स्पेसिफिक क्या एक्टिविटीज हैं जो सफल रही हैं, या जो एक होप को क्रिएट करने में मदद कर रही हैं? क्या एक्टिविटीज हैं जो कर, एक तो आपने शुरू शुरू में बताया था जो मार्केट बनाने की बात हुई थी, और उससे किसानों को 70-80% तक सेल उनकी तो मार्केट में आने से पहले हो जाती है। जी। इसके इसी तरह से और क्या क्या चीजें हैं? और मैं कुछ महिलाओं के बारे में भी स्पेसिफिकली मैं जानना चाहूंगा कि कैसे एंगेज कर रहे हैं महिलाओं को इस प्रोजेक्ट में आप, कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए?
जी जी। महिलाओं को कम्युनिटी बिल्डिंग में एंगेज करने का एक तो अभी वही बात हुई जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर, इकोनॉमिकली पुअर लेडीज़ जो हैं उनको हमने वो किचन गार्डनिंग में जो इन्वॉल्व किया, तो दैट वाज ए वेरी सक्सेसफुल इंटरवेंशन। तो वो अभी कंटिन्यूस चलता ही है। और एक पैरेलली इसके हमने और किया है। ये इंडिया में अभी तक एक ही क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड है, वो है कॉटन। तो कॉटन को प्रिज़र्व करना नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड एक बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। तो वो हमने साउदर्न पंजाब में जहाँ पे ये कॉटन होता है, तो उस एरिया में हमारे फार्मर्स को डेफ़िनेटली वो तो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन नहीं लगाते थे। तो कइयों ने तो लगाना बंद कर दिया या कम कर दिया। तो उनको हमने बोला कि ओके वी आर स्टार्टिंग विद दिस कॉटन प्रोजेक्ट। तो हम हैंड स्पिनिंग, हैंड वीविंग शुरू करेंगे कॉटन की एंड वी विल ट्राई टू सेल इट। तो वो प्रोजेक्ट हमारा अभी 7-8 साल हुए हैं उसको शुरू किए। तो अभी वो काफ़ी सक्सेसफुल स्टेज में है। हम अब तो उसमें बहुत अच्छे हमने प्रिंटिंग डिज़ाइन्स भी क्रिएट कर लिए हैं। तो अभी वो जैतों में हमने पूरा एक सेपरेट सेटअप लगाया हुआ है जहाँ पे एवरी 3 मंथ नया ग्रुप आता है, 10 से 12 लेडीज़ का, जेंट्स भी कभी आ सकते हैं उसमें, मोस्टली लेडीज़ होती हैं। तो उनको स्टाइपेंड भी दिया जाता है। वो वहाँ पे ट्रेनिंग लेती हैं और उसके बाद इफ़ दे वांट टू कंटिन्यू तो वो अपने घर में अपना चरखा लगा के वो अपना स्पिनिंग कर सकते हैं या वो करगा लगा के वीविंग कर सकते हैं। तो वो सब वहाँ पे एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट वो चल रहा है। एक और इंटरवेंशन की बात करूँ, जो अभी कैंसर की बात हुई या और बीमारियाँ जो पंजाब में आ रही हैं, तो हमने 20 साल पहले से ही पंजाब में ये मूल अनाज की बात करते थे कि व्हीट, राइस को निकल के हम बाजरा, जौ, रागी और ये जो हमारे बेसिक मिलेट्स हैं, इनकी ओर जाना चाहिए। तो पहले हम डेफ़िनेटली आई वुड से कि हमें बहुत ज़्यादा उसमें वो सक्सेस अचीवमेंट्स नहीं मिली। बट 2016-17 में कुछ बात हुई कि डॉक्टर खादर वली जो है ये साउथ में बहुत उसका प्रचार कर रहे हैं। तो हमारे एक कोलीग जो हैं खेती विरासत मिशन में, ही हैड सम इश्यूज़, मेडिकल इश्यूज़, उसके लिए वो उनके पास गए। तो ही वाज़ वेरी मच कन्विंस्ड कि हमें उनको बुलाना चाहिए, ही हैज़ वेरी नॉलेज, ग्रेट नॉलेज। तो वो नॉलेज नीचे तक जाएगी, डिसैमिनेट होगी, तो तब लोग मिलेट खाने शुरू करेंगे। तो 2017 में हमने डॉक्टर खादर वली को बुलाया, तो उनका पहला लेक्चर पंजाब में गुरदासपुर में ही हुआ था। उसके बाद से इट्स ए बिग चेंज, अब पंजाब में टनों के हिसाब से मिलेट्स बिक रहे हैं। और हमारे जो ऑर्गेनिक वाले आउटलेट हैं, 50 प्लस आउटलेट्स हैं, जो हमारी ओर से खेती विरासत मिशन की ओर से मिलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इसके अलावा कॉमन जो नॉर्मल नॉन ऑर्गेनिक ग्रोसरी स्टोर्स हैं, जहाँ पे कभी लोग माँगते थे मिलेट्स तो कुछ नहीं मिलता था, अब वहाँ पे हर हर जगह पे मिलेट्स मिलते हैं। और हमने अपने जो हमारे आउटलेट्स हैं, उन पे जो हमारे किसान बेच रहे हैं मिलेट्स, उनको पूरी ट्रेनिंग दी हुई है कि कौन-सी बीमारी में कैसे कौन से मिलेट्स खाने हैं, तो उसमें रिकवरी होगी। तो दे गाइड द पीपल लाइक फूड डाइट एक्सपर्ट्स। तो ऐसे गाइड करके उस हर तरह की बीमारियाँ लोगों की दूर कर रहे हैं यहाँ पे। चाहे डायबिटीज़ हो, मोटापा हो, आर्थराइटिस हो, थायराइड हो, हर बीमारी में प्रॉपर्ली उनकी काउंसलिंग करके, गाइड करके, उनको रिज़ल्ट्स लेके दे रहे हैं कि कैसे उनमें फ़र्क पड़ रहा है। तो इट्स ए ग्रेट इंटरवेंशन आई वुड से। आप एक तो करण, आपने हैंड रेस किया हुआ है, तो जी। मैं मेरे वाला कुछ चीजें और इम्पोर्टेंट रह गई थी वो शेयर करना चाह रहा था। राजीव जी का अगर कंप्लीट हो गया है तो फिर मैं शेयर कर देता जी, हूँ। जी। जी। तो दो तीन चीजें और इसमें इंटरेस्टिंग है, मैं चाहूंगा उनको बताना कि जैसे मानस जी पूछ रहे थे ना कि पहले यूथ आ रहे थे और अब जो है उनमें दोनों में क्या फर्क हमने देखा है। तो जैसे शुरुआत में हमें यूथ मिल नहीं रहे थे और अब जो है हमें आसानी से युवा मिल जाते हैं, तो उसके लिए हमने कुछ कुछ जो चीजें की थी उनमें ये भी था कि एक तो हम साइकिल से गांव गांव में हमने यात्राएं की, जहां हम लोग जाकर के सरपंच वगैरह से मिलते थे, गांव के और भी जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उन सब से मिलकर के, और चौपाल जैसी करते थे, मीटिंग्स करते थे।
फिर साथ साथ में जैसे जैसे हमारे बैचेस ग्रेजुएट होते गए, उन्हें हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से उन्हें रिकॉग्नाइजेशन भी दिलवाते थे। तो ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से उनको सर्टिफिकेट्स वगैरह दिलवाते थे। तो उससे भी उनके पेरेंट्स को खास करके और उन युवाओं को उनके मन में एक रिस्पेक्ट बढ़ा कि देखो, मैं खेती वाली चीजों से भी जुड़ता हूँ तो भी मुझे कलेक्टर और एसपी सम्मानित कर रहे हैं। ये चीज हुई। और दूसरा, मीडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। हमारे साथ कुछ लोकल मीडिया के जो लोग जुड़े हैं, तो वो कई बार इन लोगों के इंटरव्यूज वगैरह छापते हैं और इनसे बातचीत करते हैं, और ये लोग क्या क्या सीख रहे हैं, या फिर ये लोग जब एक्सपोजर पे कहीं हम लोग भेजते हैं इनको और वापस लौट के आते हैं, तो वो इनके एक्सपीरियंस को लोकल न्यूज़पेपर वगैरह में देते हैं। तो इन सारी चीजों से भी उनके अंदर, युवाओं के अंदर एक ऐसा है कि नहीं, इस सेंटर पे हमें चलना है और इनके साथ जुड़ना है। Sure, sure. That's fantastic. Let me come to Elias on this. What are the specific interventions just which have really worked for you in building a community at the panchayat level or at the district level for you? The thing is that main thing that we are trying to help farmers to sell their products. For example, we organize that local market, district level or taluka level market. Then because we are here, logistic is it's okay kind of things, because we have enough public vehicle and train also. If within 1 hour also, farmers can reach it near the town, and here also the town and village are all together. So we organize local market with the consumers support. So the farmers will bring their product to sell to direct to consumers. So then that local people also understand that important of the because if they are selling that conventional market, they will get a little less price. So this is one important thing. And then we and consumers also understand that real farmers they are bringing. So there is no need to any certification system. Even PGS also we are not following. Nobody has PGS. Only for that export some spices crops like cardamom or pepper only needed third party certification or PGS. Otherwise, most of these local organic outlet is going well. That's one thing. And then also online marketing. A lot of individuals, especially youngsters, they left their job, IT job, and coming for organic farming. They are using that social media platform for the selling not only their products, they are helping to farmers to their products. Mostly our products is rice, coconut oil, and vegetable and spices. So vegetable and tubers can sell in locally. Rice through online, like especially this medicinal variety Navara, Raktashali kind of varieties. Also, this through online system we are selling to states and outside states. So this network making, we are giving that opportunities farmers to connect to consumers. And then when they join into our local committees as a taking membership, they will join local WhatsApp group, and they can share their products and each and every program farmers can bring their products and sell. And also farmers get that connection to different kind of seeds. That's also farmer feeling that if we join this organization, we will get lot of knowledge and also seeds. We around I think 100 more variety of rice cultivations farmers are there, and also 80 more variety of tubers and different kind of vegetables, banana. And these all they don't get from any university or agriculture department. That only get through our network. So this is all the people are and even consumers also attracted by these products. They get brand rice, red rice, lot of diversity of red rice. So they're feeling they're diabetic or any patients, they get the farmers connection to local level to buy the red rice from their side. So, using what I understand, using the market linkage, the last mile Yes. as a Yes. tool for community building, and also creating a sense of pull between. So it's a farmer consumer community which is being built Yes. through these activities. Interesting. And Yeah. same, and the seed sharing, a community of seed savers and sharing is being built. That's very interesting. Tell me quickly, I have got question about politics. I want one sentence or two sentences from each one
about how the politics has affected us negatively or positively, or have you found a way of making it work for you in any way? Rajiv ji. No. Punjab politicians, they have no concern with this organic farming. We couple of times in the last 10 years in before election, we went to our all these parties with an organic farming manifesto, sustainable farming manifesto. So I told Umender ji that even if you give them a blank check to sign, they will sign right now. They won't say no to anything. So, but after election, they won't talk to you anything. So this is the situation that now the current party also, there are many ministers, senior leaders who are personally known to Omender ji, but when they talk to them, they said if you want some event to be organized, you want us to sponsor that, or you want me to come as a guest, no problem. Anytime you are welcome. But if you want any policy, don't ask us. Nothing in our hand. This is simple, the reply. But Informal reply. but all this Actually, before continue, I can ask one question to Ilyas. sure, please. Ilyas Sure. said one thing that this paddy 80% cultivation area reduced for paddy in Kerala. I think this is what I heard. Is that true, Ilyas? Yes. Around 9 lakhs hectare rice cultivation were there 90, 60, 70 time. And within 40 years, we are converted this paddy land to different development. So, is it shifting to other crops or what? Shifting to other crops also for the roads and buildings, and because we have a very less area. Okay. Uh, Okay, population density is highest in yeah. Kerala. So new style of homes and roads need more space. Yeah, I Yeah. got it. I got it. Yeah. So yeah, you tell me. मेरे Karan बताइए हाँ. जी, तो हमारे यहाँ पे लोकल जो लीडर्स हैं उनसे मिलना हुआ मेरा। शुरुआत में भी जब हमने शुरू किया था तब भी मिलना हुआ था, और बीच में भी मिलना हुआ। तो जैसा राजीव जी वहाँ के पंजाब के सिनेरियो में बता रहे हैं, तो हम भी जब मिलने जाते हैं और अब बताते हैं कि हमने ये शुरू किया और ये उसकी प्रोग्रेस है, तो हमेशा अप्रिशिएट करेंगे। वो बोलते हैं कि हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमारी तरफ से कुछ भी सपोर्ट हो तो बताना। पर अभी तक हमें भी शायद अभी तक उनके इस तरह की किसी सपोर्ट की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट डेफिनेटली पॉलिसी लेवल पे जरूरत पड़ेगी। छत्तीसगढ़ के एक डिस्ट्रिक्ट है दंतेवाड़ा, वहां पर दंतेवाड़ा को पूरा ऑर्गेनिक घोषित किया है। वहां पे एक लोकल कुछ किसानों ने मिलकर वहां पे भूम गादी नाम से एक कंपनी शुरू की थी, और उसके माध्यम से ब्यूरोक्रेट से मिलके और वहाँ के पॉलिटिशियंस से मिलके वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को ऑर्गेनिक बनाए। तो हम ये वाला आइडिया लेकर के इनके पास गए थे, और हमने बताया कि हम पूरा डिस्ट्रिक्ट अभी अपन उदयपुर नहीं लेते हैं, पर अपन अपना ये झाडोल के एरिया को अगर लेंगे, और आप अगर अपनी तरफ से कुछ वीडियो शेयर करेंगे या लोगों से अपील करेंगे तो आपकी बात को थोड़ा ज्यादा सुनेंगे। तो वही है कि उस दौरान तो चुनाव का टाइम था, तो वो इजीली हमारे लिए अवेलेबल थे। अभी तो चुनाव हो गए हैं तो वो मिलते भी नहीं है, जयपुर में बैठते हैं, तो देखेंगे उनसे कैसे मुलाकात करनी है। तो आपने कभी कोशिश करी जो पर हाँ ये है कि जो वो हारे थे नेता, उनसे बात करें अब? हाँ उनसे भी बात उनका अगले चुनाव का मुद्दा बनवा दीजिए इसको। सही है। What do you say, Ilyas? How's the political will? Supporting you, not supporting? You know that in Kerala, the left politics is very strong. They don't allow to any this organization to grow more. They are little fear about any organization to grow, especially this voluntary movement is going ahead. So but in our case, most of the political parties are the local members are also our members. So even right or left or they're all members in our organization. So
we don't tell them to bring their politics in our organization. It's Mhm. clearly mandatory, and in our bylaw also very clearly have told. So we that kind of influence we don't have, but there are issues in some kind of area, but we are overcoming. And some districts it was interrupted and things, and then we are overcoming. And another thing is we do whenever we organize, we don't bring political parties neda or anybody. We will bring in our each and every local programs, ward member or panchayat president or block panchayat president or MLA, MP. We will invite people who already representative of the assembly or local panchayat or so that is our strategy. We don't, because of this CPM local committee neda or anybody or Congress neda, we don't invite them. We generally check that who is the candidate, who is the representative from the local level. So each and every program we will assure to invite the ward member, panchayat secretary or block panchayat president, or if it is little more big program, MLA. If it is state level program, minister, always ministers, local MLA maybe that there will be the local minister also. So we try to always balance left and right politics. And for the policy level, even we invite the minister for our state Sangamam or farmers meeting, but they don't invite us for any policy intervention, especially in Kerala. Planning board is against organic farming, and Kerala Agriculture University also against organic farming. So they don't want to bring this. They are telling it's unscientific. It will not work in Kerala, and it will yield. So this typical the scientific typical old so things are there very strongly. So they don't want to involve us any policy discussion, even though BPKP program is there and some kind of organic farming subsidy or scheme also there, but they don't want to invite us Mhm. for the policy level. So, so I've got one last question now, and we've got approximately 5 minutes before we start taking any questions. My question is to each one of us is how do you think the Farmversity Alliance or this parallel body of organizations across the country, all informal, can actually support or weave an ecosystem which can help further the mission or the vision of individual organization, individual Farmversity. What do you say, राजीव कोहली जी? आपको क्या लगता है कि हम क्या इस अलायंस में चाहते हैं या इससे हम ले सकते हैं एक दूसरे से? क्या करना चाहिए? हमारा अगला कदम क्या होने चाहिए? कह दो। देखिए, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अल्टरनेटिव एजुकेशन। आज हमारे यहाँ सब्जेक्ट वो तो नहीं था, तो उस पे जब बात करते हैं तो यू सी आज हम लोगों को एजुकेशन जो दे रहे हैं, बीए, एमए, आईटी की ग्रेजुएशन और व्हाटएवर अदर फॉर्मल एजुकेशनल डिग्रीज, आज अगर सब जगह कर्फ्यू लग जाए या ब्लॉकेज हो जाए या जैसे कोरोना में हुआ था, ये लोग अपने लिए रोटी पैदा करके नहीं खा सकते हैं। एक किसान जो है, चाहे वो 10वीं भी उसने स्कूल में जाके नहीं की है, वो अपनी रोटी पैदा करके खा लेगा। तो दीज़ थिंग्स वी मस्ट अंडरस्टैंड। अभी तक तो ये है कि ये वाली डिग्री कर लो, इससे पैसा ज़्यादा मिलता है। तो अगर ये सारी अंडरस्टैंडिंग लोगों की क्लियर होगी, तो पीपल विल लुक फॉर बेसिक स्किल्स। और आजकल मेट्रोज़ में जो स्ट्रेस वाले हाई-फाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला लाइफ़स्टाइल है लोगों का, उसमें भी मैंने काफ़ी लोगों का देखा है, जैसे ही वो 2, 4, 5 दिन के लिए कभी फार्म पे आते हैं, तो दे फील द डिफरेंस। तो एक अल्टरनेटिव लोगों के पास है कि वो स्ट्रेस फ्री लाइफ़स्टाइल में रहना चाहते हैं, तो लेट देम शिफ्ट टू फार्म्स। एक सिंपल लाइफ़स्टाइल रखो, तो वो अल्टरनेटिव जो है वो फार्म वर्सिटी में आके देख सकते हैं लोग। मेट्रो का आदमी कोई बाहर ऐसे शिफ्ट करना चाहता है, तो उसको कोई रेडीमेड पैकेज और कहीं नहीं मिलने वाला है, वो फार्म वर्सिटी में आके मिलने वाला है। कोई 8th 10th का स्टूडेंट है, तो he want to explore different opportunities, we can show him that one opportunity is you leave your small city and go to big city and then to metro and then to Canada or where. And one option is you live in your city with the people you lived whole life,
you live with the same people and no tension. And this alternative is possible. हम लोगों को ये alternative बताने वाला कोई नहीं था. तो आज ये एक हमें इंटेंशनल बताने के लिए Christian जी सॉरी एक इंटेंशनल इकोसिस्टम बनाया जाए और अलग अलग फार्मवर्सिटीज में हो, तो आप सपोर्ट करना सपोर्ट क्या सपोर्ट आपको लेट्स से करंट के फार्मवर्सिटी प्रोजेक्ट से या केरला से आपको क्या लगता है हम कैसे एक दूसरे की एनर्जीज को यूज कर सकते हैं? हाँ, वो देखिए हम भी यहाँ पे एक हमने कैंपस सेटअप किया है, उसकी आज बात नहीं की है। इट्स जस्ट 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम गुरदासपुर, इट्स एक्चुअली इन हिमाचल। तो उसको अभी फॉर्मली शुरू कर देंगे जल्दी। तो हमारा वही भी मोटिव वही है, तो उसमें करण का जैसे सेटअप है, तो हम कभी करण की फैकल्टी से लोग बुला सकते हैं। अब करण के पास कोई लोग कांटेक्ट करेंगे, मे बी दोज पीपल माइट बी फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया एंड क्वाइट अवे फ्रॉम करण's प्लेस। So Karan can tell that, yeah, we have another campus which is very close to you and better you go to that place. तो ऐसे अगर हमारा पूरे इंडिया में लेट्स से 5, 7, 10 प्लेस भी होते हैं, एक इलियास भाई के पास में है, एक कोई असम वाली साइड में है, हैदराबाद साइड में है, anybody comes in our contact on this issue, we can tell we have a place closer to your place, तो आपके वहाँ क्लाइमेट के हिसाब से आप अपनी खेती का सारा वहाँ पे सीख सकते हैं। तो ये नेटवर्क होना तो बहुत जरूरी है, और फैकल्टी भी हमारी एक दूसरे से सीखेगी, कुछ ना कुछ एक दूसरे के पास जा सकती है। क्या क्या लगता है करण आपको अगर आपको क्या सपोर्ट चाहिए या आप देना चाहते हैं कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि मैं ऑलरेडी जो सपोर्ट मिल रहा है मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो जब हमने शुरू किया था तब वही मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला हूं, पर ऐसा नहीं है। अब तो पूरे देश में अलग अलग जगह फार्मवर्सिटीज हैं, तो एक अंदर से फीलिंग आती है कि कोई चिंता वाली बात नहीं है, बहुत सारे लोग हैं संभालने के लिए। तो कहीं कुछ गड़बड़ आएगा तो एक ब्रदरहुड वाली फीलिंग है। और दूसरा, यहाँ से ऑलरेडी फेलोज को मैं अलग अलग जगह, जैसे सोहनगढ़ फार्मवर्सिटी पे लेकर गया कुछ फेलोज को। इलियास भाई के वहाँ, इलियास भाई जो कार्यक्रम करते रहते हैं, तो वहाँ मैं कुछ फेलोज को लेकर गया। तो अभी यहाँ पे सीकर में लेकर के गया था, बजाज फाउंडेशन का एक फार्मवर्सिटी का ग्रुप शुरू होने वाला है। तो ऑलरेडी एक जो क्रॉस लर्निंग होनी चाहिए, एक जो एक्सपोजर मिलना चाहिए युवाओं को, क्योंकि जो ट्राइबल कम्युनिटी है जो सिर्फ यहीं तक सीमित है, जिसने अभी अलग अलग जगह जो प्रयोग हो रहे हैं वो नहीं देखे हैं, तो उनको वो मौका अभी से मिलने लग गया। तो ये एक बहुत अच्छा एक नॉलेज एक्सचेंज हब जैसा भी है। और जैसे राजीव जी बता रहे थे कि हम लोगों को भी, जैसे अगर हम फैकल्टीज को भी कोई नई चीज सीखनी है तो हम एक दूसरे से हेल्प ले सकते हैं, एक दूसरे के कैंपस में जाकर और विजिट कर सकते हैं, ताकि अपने कैंपस को और कैसे इवॉल्व करें और ज्यादा बेहतर कैसे बना सकें। Let me take this question to Ilyas now about what kind of support you think will help strengthen your movement. So it's a good initiative, and first of all, I thank you for you to invite me here, and especially the behind this idea about the farmversities. We know there are a lot of alliance in India national level, and I think it's about really playing a role about catalytics. That is a very important thing, I feel, because to making network and understanding each other organization, local to national, region to region, it will be very good. We can share their knowledge and also their activities. Also, we can learn, and also we understand the limitation from each area, and also how we can make over, and also from their experience, and also their we can learn and we can grow ourselves. So it will be helpful for that networking and it make a catalytic play of the role. And also I have a concern about all this. We know that we have a lot of this organization and will start with a lot of enthusiasm, but to sustain it's very difficult. It's about the people. For example, the networking. For example, if I join a network, I already have a lot of activities myself involved.
and then I cannot give that time to organize or anything. So in future it will feel guilty also. So this kind of most of the networking alliance we see that is there people who are already involved in a lot of other local or national organizations. That is the challenge, how we can bring all together. Or if you are making an informal network, and in future also just networking and doing organization not very formal, maybe it will be good. But if you want to make more formal and things, it will it's naturally it is very difficult anyway. You have to that's only I have a concern, because I know that Organic Farming Association of India also last 5 years we are trying to build a network in other states. Some states is working, some states is not working. So that is always a challenge. Thank you for inviting me. Thanks, Ilyas. In fact, that's always been alive to me, that creating a formal structure, the word democracy, the word organization, scaffolding, this is basically an invention of the industrial capitalistic times. And we need to go back to learning from the community, which Karan is a part of, which is the tribal community, and learn the nuances of building what we can learn from the tribes. And that's also I have a see this informal also, there are only some people only leading always. That is the problem. So there are new people not coming to the leadership role. So there are limitation for the informal, and then there are advantage for them. So we have to both understanding. That's why I'm telling we have to learn each other. There is not To learn from each other. That's yeah. absolutely right. So I got just 5 minutes now remaining. Before we formally close this, we can of course keep talking after that. And in the meantime, I've got a couple of questions here. Let me just read it. Ashi is asked, let me read the question and then field it. In new places, for the initial transition to happen towards organic farming, how do you convince farmers to turn organic when there isn't an existing market? The market will only come into place after you have products for which you require conversation to organic. So it's how do you break the cycle? It's a catch-22 of whether the market will come first or the consumer will come first or the farmer will come first. This is kind of a little out of scope for our community thing, but let me go to the next question. But I'm holding on to this question. Rajiv ji, I think you have an answer to that. Yeah. Levin has asked, is getting market linkage a big issue for farmer groups? If yes, do you seek any help? So let me get the answer for the first one from Rajiv ji. क्या कहते हैं आप? See, I have the organic farming food outlet in Gurdaspur. So many people come here. So maybe half of those people have one way or the other farming background. So when they see the rates are high, 20%, 50% or 70% higher than the regular market, so they assume that okay, if we produce this thing in their farm, and they can earn more money, so they will say अच्छा मैं ऑर्गेनिक कर लेता हूँ अपने खेत को, तो आप मेरा सामान ले लोगे, मैं कर लेता हूँ, तो मैं ये पैदा कर देता हूँ। आई सेड डोंट डू इट, तुम 6 महीने में 1 साल में उसको बंद करने वाले हो। तो ही सेड व्हाई? तो आई टेल देम इफ यू आर डूइंग इट फॉर मनी यू विल नेवर स्टे ऑन दैट। आप जिस दिन आपको समझ लग गई कि जो आप केमिकल खेती कर रहे हो वो गलत है, अनसस्टेनेबल है, दैट इज नॉट गुड फॉर योर फैमिली एज वेल एज फॉर आवर कम्युनिटी, उसके बाद जब आप शिफ्ट करोगे ना, तो फिर आप परमानेंटली शिफ्ट करोगे। वो जब शिफ्टिंग आप करोगे देन आई विल सपोर्ट यू। इफ यू आर डूइंग इट फॉर मनी प्लीज डोंट कम टू मी बिकॉज आई नो यू आर गोइंग बैक एनीवे। तो ये जो भी आदमी वो बात करता है, टेल हिम दैट फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, डोंट कम फॉर मनी। इफ यू आर गोइंग टू कम फॉर मनी यू विल डेफिनेटली गो बैक इन 1 year or 2 year, बट वंस यू अंडरस्टैंड इट, ये जरूर हो सकता है कि 10 एकड़ वाला एक किसान है, ही मे स्टार्ट विद हाफ एकड़, 1 एकड़, एंड ही मे नॉट गो फर्दर देन 2 एकड़ और 3 एकड़। उसके बाद वो बोलेगा नहीं, इससे ज्यादा मुझे ऑर्गेनिक नहीं करना है, बट वो जितनी करेगा उसको वापस केमिकल में नहीं लेके जाएगा। बट द पर्सन हु विल लुक फॉर मनी, वो 1 साल करेगा, दूसरे साल सारा वापस आ जाएगा वो।
इसमें ना एक और चीज है आशी, which I want to say is कि हमारा भी माइंडसेट है कि ऑर्गेनिक उगाएंगे तो उसको ऑर्गेनिक की तरह ही बेचना है, लेकिन इसका एक और भी तरीका है। आप ऑर्गेनिक उगा कर उसको मंडी में भी तो बेच सकते हैं। जिस दिन एक किसान उस ट्रांजैक्शन में भी मुनाफा कमाने लगेगा, ये प्रॉब्लम ही रिजॉल्व हो जाएगी। अभी हमें ऑर्गेनिक के लिए ऑर्गेनिक के बाजार खड़े करने पड़ रहे हैं, सब करने पड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे भी हम किसानों को मैं तो जानता हूँ जो ऑर्गेनिक उगाते हैं और सीधा उसको मंडी में भेज देते हैं, कहते हैं कि हमारा तो इसी से ही इतना मुनाफा हो जाता है कि उसको अलग से बेचने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो एक अलग लेवल ऑफ अबंडेंस है जो एस्पायर किया जा सकता है एक कम्युनिटी में। व्हाट इफ सारे ही किसान केमिकल्स का इस्तेमाल कम 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 करके एक टाइम पे आए कि नेगेट हो जाए, और ट्रांजिशन हो उसका टेक्नोलॉजी मेथड्स प्रोसेसेस में। मतलब ये एस्पिरेशनल है, पर सोचा जा सकता है इसके बारे में। और 11 का जो सवाल है, गेटिंग मार्केट लिंकेज अ बिग इशू फॉर फार्मर ग्रुप्स, if yes, do you seek any help? Elias, would you like to answer that? I didn't hear. The Sorry. question is getting market linkage Ah. a big issue for farmer groups? Yeah. If yes, do you seek any help? Any help? Do you seek any help from outside, or how do you Yeah. get? For external marketing, we are trying organizing different programs, especially like for Biofactory India. We are organizing farmers market in Delhi every year. So for the local market system also, we try to build that local small organic outlets or weekly market. For the external, if the products is more, we want to sell and export. So we also help small entrepreneurs or farmer group to bring them like a Biofac kind of B2B business area. In the subsidy rate, we organize that 20 or 30 stalls space for them. So even if it one farmer group cannot come to, they can come 2 or 3 groups together and organize their market there. So that is we are organizing. And also we do for online. Now we are starting to online marketing networking system. Online. So with that, I hope that answers, and also we are just in time to close our session officially. Of course, you are invited to stay on and have a chit chat. And let me thank Rajiv ji, Ilyas ji, Karan ji, who have joined us and shared their experience and insights about the community aspects of their projects in Farmversity. Thank you, everybody, and really honored to have been part of this conversation. And I want to thank the Multiversity team, Atul and Kala, for keeping this 5-session going with such perfection. Thanks. And thanks everybody for joining in. Thank you. Thank you. Thank you. So now you can close the recording you. and have more questions.